بردان میں افسوسناک حادثہ، پہاڑی علاقے میں مائننگ کے دوران دھماکہ ہوا، 7 افراد جاں بحق 3 زخمی۔ اطلاعات کے مطابق حادثے کے وقت 10 سے 12 افراد موجود تھے۔ ملبے سے مزید افراد کی تلاش کا عمل جاری ہے۔ ریسکیو ایمبولینسز اور بھاری مشینری جائے وقوع پر موجود ہے۔ زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے جاری ہیں۔ محلات شہر میں 11 شہری شہید ہو گئے۔ صبح ہرمزگان میں کارگو کشتی کو نشانہ بنایا گیا، 8 افراد جان سے گئے۔ کرمانشاہ میں بھی 1 شہری شہید ہوا۔ اصفہان میں اسلحہ ڈپو پر 907 کلو گرام وزنی بم گرا دیا گیا۔ ٹرمپ نے دھماکوں کی فوٹیج شیئر کر دی۔ تہران میں بلیک آؤٹ کے بعد بجلی کی سپلائی بحال ہو گئی۔ ایران کے صوبے زنجان میں بمباری سے 3 شہری شہید، متعدد زخمی۔ تاریخی جامع مسجد حسینیہ اعظم کو بھی نقصان پہنچا۔ بلیٹن میں سب سے پہلے ہولناک جنگ بند کرانے کی کوششوں کا ذکر، پاکستان اور چین ایک پیج پر۔ دونوں ممالک نے 5 نکاتی پلان پیش کر دیا۔ فوری جنگ بندی، امن مذاکرات کا آغاز اور آبنائے ہرمز کو کھولنے کا مطالبہ۔ شہریوں، بجلی گھروں اور جوہری توانائی کے پرامن منصوبوں پر جاری حملے روکنے پر زور دیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بیجنگ میں چینی وزیر خارجہ سے ملاقات کی۔ خطے کی سنگین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسلام آباد سے ٹکا خان ثانی رپورٹ کریں گے۔ پاکستان اور چین نے مشرق وسطی میں کشیدگی ختم کرنے کے لیے 5 نکاتی پلان پیش کر دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور چینی وزیر خارجہ وانگ یی کی بیجنگ میں ملاقات۔ خلیج اور مشرق وسطی میں امن و استحکام کی بحالی کے لیے ممکنہ اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ چین اور پاکستان فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے زور دیتے ہیں کہ تنازع کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے بھرپور کوششیں کی جائیں۔ تمام جنگ زدہ علاقوں تک امداد کی رسائی بھی یقینی بنائی جائے۔ تنازعات کے حل کے لیے بات چیت اور سفارتکاری ہی واحد مؤثر راستہ ہے۔ فریقین تمام تنازعات کے پرامن حل کے عزم کے ساتھ مذاکرات کا آغاز کریں۔ طاقت کے استعمال یا اس کی دھمکی سے گریز کیا جائے۔ دونوں ممالک نے فریقین پر زور دیا کہ وہ فوری طور پر شہریوں اور غیر عسکری اہداف پر حملے بند کریں۔ توانائی، میٹھے پانی اور نیوکلیئر پاور پلانٹ سمیت بجلی گھروں کو نشانہ نہ بنائیں۔ آبنائے ہرمز میں موجود جہازوں اور عملے کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے۔ شہری اور تجارتی جہازوں کو جلد محفوظ راستہ دیا جائے۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ چین اور پاکستان اقوام متحدہ کے منشور اور بین الاقوامی اصولوں کی بنیاد پر دیر پامن کے لیے معاہدے کی حمایت کرتے ہیں۔ آبنہ ہرمز کی بندش امریکی صدر کے لیے ڈراؤنا خواب بن گئی ہے۔ عالمی سمندری گزرگاہ کھلوائے بغیر ہی جنگ ختم کرنے کو تیار ہو گئے۔ ساتھ نہ دینے پر فرانس اور برطانیہ پر برس پڑے۔ کہا آبنہ ہرمز جا کر خود تیل لوں۔ اب امریکہ مدد نہیں کرے گا، آپ کو خود لڑنا سیکھنا ہوگا، بالکل اسی طرح جیسے آپ ہمارے ساتھ نہیں تھے۔ امریکہ کی توجہ اب صرف ایرانی بحریہ اور میزائل ذخیرے کے خاتمے پر ہوگی۔ آبنہ ہرمز کی بحالی کے لیے کارروائی بعد میں کی جائے گی۔ سپر پاور کے صدر کی پسپائی، ٹرمپ نے گھٹنے ٹیک دیے۔ آبنائے ہرمز کھلوائے بغیر ایران کے خلاف جنگ ختم کرنے پر آمادگی، مشیروں کو بھی ارادے بتا دیے۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے بڑا دعویٰ کر دیا، ایرانی بحریہ اور میزائل ذخیرے کے خاتمے پر توجہ ہوگی۔ آبنائے ہرمز کی بحالی کے لیے کارروائی بعد میں کی جائے گی، فی الحال سفارتی دباؤ ڈالا جائے گا۔ امریکی صدر کے مطابق فورسز بھیجیں تو تنازع 6 ہفتے سے بڑھ جائے گا۔ یورپی اور خلیجی قیادت پر گزرگاہ کھلوانے کی قیادت کے لیے زور دیا جائے گا۔ امریکی صدر جنگ میں شامل نہ ہونے پر برطانیہ اور فرانس پر برس پڑے۔ کہا جو لندن کی طرح آبنائے ہرمز سے تیل نہیں نکال پا رہے وہ امریکہ سے فیول خریدیں۔ ایسا نہ کرنے والے اپنی حفاظت خود کریں، ہم ان کے لیے موجود نہیں ہوں گے جیسے وہ امریکہ کے لیے موجود نہیں تھے۔ ادھر فرانس نے اسرائیل جانے والے طیاروں کو فضائی حدود استعمال کرنے سے روک دیا۔ اٹلی نے بھی امریکہ کو فضائی حدود کی اجازت دینے سے معذرت کر لی۔ جبکہ امریکی وزیر جنگ اور صدر ٹرمپ کے بیانات میں تضاد، پیٹ ہیگسٹ نے نیوز بریفنگ میں کہا کہ امریکی فوج زمینی آپریشن کے لیے تیار ہے، ضرورت پڑنے پر ایران میں زمینی کارروائی ہوگی۔ صدر ٹرمپ ایران کے ساتھ ڈیل چاہتے ہیں، اگر تہران سمجھداری کا مظاہرہ کرے گا تو معاہدہ کر لے گا، اگر ڈیل نہ کی تو مزید شدت کے ساتھ حملے جاری رہیں گے۔ جنگ میں آنے والے دن فیصلہ کن ہوں گے، تہران کچھ نہیں کر سکے گا۔ اور ایران کا کل سے خطے میں امریکی کمپنیز کو نشانہ بنانے کا اعلان۔ ایرانی وقت کے مطابق رات 8 بجے حملے کیے جائیں گے، ملازمین اور شہری محفوظ مقام پر منتقل ہو جائیں۔ ترجمان پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ امریکی AI اور ICT کمپنیز ہمارے جائز اہداف ہوں گے کیونکہ یہ کمپنیز اہداف کی نگرانی اور منصوبہ بندی کرتی ہیں۔ ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ پاسداران انقلاب کی ہٹ لسٹ میں 18 امریکی کمپنیز ہیں۔ ایران کے اسرائیل پر بھی جوابی حملے جاری، تل ابیب، حیفا اور اسرائیل کے زیر قبضہ علاقوں پر میزائل اور ڈرون داغ دیے۔
बैतुल मक़दस में 10 धमाके सुने गए। ड्रोन हमले में दुबई के करीब कोयती ऑयल टैंकर को भी नुकसान पहुंचा। इस्फहान में अमरीकी ड्रोन को मार गिराया गया। लेबनान में सेहूनी फौज और हिजबुल्लाह की झड़पें जारी। हिजबुल्लाह के हमलों में मजीद 4 इसराइली फौजी हलाक और 2 जख्मी हो गए। ईरान के खिलाफ जंग अमेरिका के लिए मुआशी फंदा बन गई है। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप चाहते हैं कि अरब ममालिक जंग के अखराजात में हिस्सा डालें। वो 6 अप्रैल से पहले ईरान के साथ डील चाहते हैं। अमेरिका अपने हुर्मुज़ पर टैक्स आयद करने की हिमायत नहीं करता। और यहाँ अमरीकी सदर ट्रंप के एक और नए बयान की बात। अमरीकी सदर कहते हैं कि उनके ख्याल में ईरान के साथ जंग जल्द खत्म हो जाएगी। आबनाए हुर्मुज़ इस्तेमाल करने वाले ममालिक को खुद आगे आकर इसे खुलवाना चाहिए। जब हम मैदान में आए तो आबनाए हुर्मुज़ खुद ब खुद खुल जाएगी। वाहिद मिशन ये था कि ईरान के पास जौहरी हथियार ना हो। हम ईरान की जौहरी सलाहियतें ख़त्म कर चुके हैं। अब ईरान में ज़्यादा समझदार लोगों से बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की सालिसी से मुताल्लिक़ गैर मुल्की प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया है। ईरानी मौक़िफ़ की गलत तशरीह की गई है। गैर मुल्की और भारतीय लॉबीज मुतहरिक हो गई। इस्माइल बकाई का बयान तोड़ मरोड़ कर पेश करने लगे। तब्दील शुदा वीडियो को भारतीय ज़राए अबलाग ने प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल किया, मगर ईरान की सरकारी खबर एजेंसी पर मौजूद वीडियो बयान ने सारा कच्चा चट्टा खोल दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का तुर्क हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। तुर्की पर मिसाइल हमलों से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। तुर्क हम मनसब को मुश्तरका तहकीकात की पेशकश करते हुए अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान हमले में मुलव्विस नहीं, मुश्तरका तकनीकी ताउन के लिए तैयार हैं, अच्छे हमसायों के उसूलों और तुर्की की इलाकाई सालमियत का एहतराम करने के पाबंद हैं। बुनियादी ढांचे और तवानाई की तनसीबात पर हमला करने की अमरीकी धमकियाँ आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। रिजीम चेंज बहाना, तेल और गैस के ज़खायर निशाना। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने अमेरिका के अज़ाइम से पर्दा उठा दिया। सरगई लारूफ कहते हैं दुनिया में रिजीम चेंज के नाम पर तेल और गैस के ज़खायर पर कब्जे हो रहे हैं। मशरक़ वस्ता का तनाज़ा वसी जंग की शक्ल इख्तियार कर सकता है। अमेरिका और इसराइल ईरान के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाना नहीं चाहते। तेहरान के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला बंद होना चाहिए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के बेटे को अमरीका बदर किया जाएगा। व्हाइट हाउस के साबिक मुशीर स्टीव बैनन का मुतालबा। कहा नेतन्याहू के बेटे को ईरान जंग पर भेजा जाए। होमलैंड सिक्योरिटी को उसे कल ही मुल्क से निकाल देना चाहिए। इसराइल अमरीका, यूरोपीय और अरब ममालिक के साथ खेल खेल रहा है। सदर ट्रंप को मुज़ाकरात के लिए इख्तियारात और मुतबादिल इक़दामात की ज़रूरत है। आपको बताएं कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के बेटे को अमरीका बदर किया जाए। व्हाइट हाउस के साबिक मुशीर स्टीव बैनन का मुतालबा। कहा नेतन्याहू के बेटे को ईरान जंग पर भेजा जाए। अमेरिका ईरान जंग के बाद जिक्र करेंगे इल्जामात की जंग का, जो कि अली जफर ने जीती है। जी हां, लाहौर की सेशन अदालत ने गुलकार अली जफर के मिशा शफी के खिलाफ हत्या की इज्जत के दावे पर फैसला सुना दिया है। अदालत ने गुलकारा मिशा शफी को 50 लाख रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म दे दिया। आइंदा हिरासगी से मुतालिक ट्वीट करने से भी रोक दिया गया। अरशद अली रिपोर्ट करेंगे। गुलकार और अदाकार अली जफर जिनसी हिरासानी के इल्जामात से सुरखरू। मिशा शफी के खिलाफ केस जीत लिया। अदालत का गुलकारा को 50 लाख रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म। एडिशनल सेशन जज आसिफ हयात ने मुख्तसर तहरीरी फैसले में लिखा, मिशा शफी का 19 अप्रैल 2018 को अली जफर के खिलाफ ट्वीट हत्या की इज्जत गलत और झूठा साबित हुआ। अली जफर पर जिनसी हिरासानी के इल्जामात साबित नहीं हुए। दरख्वास्त गुजार हर्जाने का हकदार है। हमने इन कोर्ट्स पे एतमाद की है और आज अल्लाह का शुक्र है कोर्ट ने हमारे मौक़िफ़ को सही साबित की है और इनके एलिगेशन झूठ थे। कोर्ट ने इस पे फैसला दिया है और उनको 50 लाख रुपए जुर्माना किया है। अदालत का मिशा शफी को किसी भी प्लेटफॉर्म पर दोबारा अली जफर पर इल्जामात न लगाने का हुक्म। रकम की वसूली के लिए फरीकैन को 4 मई को तलब कर लिया। कैमरामैन हसन महमूद के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। अब आपको ये बताएं कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी। दीवारें गिरने और मुख्तलिफ हादसात में 3 बच्चों समेत 6 अफराद जाम बहक और मुतादिद जख्मी हो गए। कसूर में शादी हॉल की दीवार गिरने से 2 बच्चे जाम बहक और 5 जख्मी हो गए। 3 बच्चों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। लोरालाई के पहाड़ी मोहल्ला में मकान की दीवार गिर गई, बच्ची जाम बहक जबकि 2 बच्चे जख्मी हो गए। चित्राल में पहाड़ से गिरने वाला पत्थर लगने से 1 शख्स जाम बहक हो गया। मुजफ्फराबाद में 2 रोज से जारी बारिश के दौरान 2 अफराद जाम बहक हो गए। रावलाकोट के गाँव नड़ोल
में लैंड स्लाइडिंग से कई घरों को नुकसान पहुंचा। लाहौर में भी तेज हवाओं के साथ बादल जमकर बरसे। मुख्तलिफ इलाकों में ओले भी पड़े। बारिशों का नया सिस्टम भी मुल्क में दाखिल होने को तैयार। NDMA ने फ्लैश फ्लडिंग का अलर्ट भी जारी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की वफ्द के हमरा मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल, मशरक़ी वुस्ता में तनाज़े पर तबादला ख्याल, आम के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशों पर गुफ्तगू की गई। PPE चेयरमैन ने किफ़ायतशारी पॉलिसी से मुतालिक अपनी जमात की तरफ से तजावीज़ भी दी। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग और गैर कानूनी ज़ख़ीराअंदोज़ी रोकने के लिए सख्त इक़दाम की हिदायत कर दी है। इजलास में रिलीफ इक़दाम का जायज़ा। कहा, हुकूमत किफ़ायतशारी इक़दाम के ज़रिए आम आदमी को 129 अरब रुपए का रिलीफ फराहम कर चुकी। कमज़ोर तबके को रिलीफ फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि मुतालिका वफाकी वज़ारतें और सूबे काबिल अमल तजावीज़ दें। सूबों के साथ मुशावरत के बाद हतमी तजावीज़ तैयार की जाएँ। हज़ारा मोटरवे पर इंस्पेक्टर यासिर अरफात फराइज की अंजाम दही के दौरान शहीद हो गए। वो हादसे का शिकार शहरियों की मदद कर रहे थे जब एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें कुचल दिया। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने वाक़े पर गहरे दुख का इजहार किया। शहीद को कौम का हीरो करार देते हुए कहा कि पूरी वजारत मवासलात मुतासिरा खानदान के साथ खड़ी है। बेवा और बच्चों की देखभाल महकमे की अव्वलीन जिम्मेदारी है। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि हादसे के जिम्मेदार ट्रक ड्राइवर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई यकीनी बनाई जाए। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा के खिलाफ मरकजी अपील सुनी जाएगी या सजा मअतल करके जमानत पर रिहाई की दरखास्त पर फैसला होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वकला को बानी और बुशरा बीबी से हिदायत लेने की मोहलत देते हुए फैसला 6 अप्रैल तक मौखर कर दिया। शहजाद अली रिपोर्ट करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी डिवीजन बेंच में 190 मिलियन पाउंड केस में नैब की मुतफरिक दरखास्तों पर समाअत। नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर जावेद अशरफ ने बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली दरखास्तों पर एतराज़ात उठा दिए। कहा कि नैब कानून में तब्दीली के बाद मरकजी अपीलों पर नोटिस के बगैर सजा मुअत्तली की दरखास्त सुनी ही नहीं जा सकती। बैरिस्टर सलमान सफ्तर ने मौक़िफ़ अपनाया कि बानी और बुशरा बीबी को सजा हुए 14 माह गुजर चुके। हम मरकजी अपील पर समाअत के बजाय सजा मुअत्तली और जमानत पर रिहाई चाहते हैं। PTI रहनुमाओं ने भी मीडिया से गुफ्तगू में पहले सजा मुअत्तली की सुनवाई पर इसरार किया। आज ये कहना कि सस्पेंशन पे फैसला नहीं होगा और अपील पे फैसला होगा, ये इंसाफ की नफी है। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने नैब प्रोसिक्यूटर के मौक़िफ़ की तायद करते हुए वकील सलमान सफ्तर से इस्तफसार किया कि अगर हम हफ्ते में 2 दिन दें तो क्या आप मरकजी अपीलों पर दलाइल दे सकते हैं? आप हिदायत ले लें, हम कोई तारीख दे देते हैं। बैरिस्टर सलमान सफ्तर ने कहा, मैं बानी और बुशरा बीबी से मुलाकात किए बगैर कुछ नहीं कह सकता। अदालत ने हिदायत लेने की मोहलत देते हुए समाअत 6 अप्रैल तक मुलतवी कर दी।